So hello all, I welcome you all in our next video of Pre-Academic School English Language for class 8. Right? Today we are starting a new lesson, lesson 10, present tense. If you remember in our last video we have gone through lesson 8, that is subject verb agreement, where we have studied about that chapter with examples, and we have also completed exercises as well. Right? So today we are starting with present tense. So let's see tense. So first of all, we will go through with tense. Let's see what is tense. They are the words that tells us about the time of an action that had happened, happens, or will happen. Right? So what are tense? They are the words that tells us about the time of an action. Right? So tense क्या होते हैं? Tense वो words होते हैं जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं, वो भी एक्शन के टाइम के बारे में. राइट? So they tell us about the time of an action, whether it had happened in the past or it happens, मतलब होता है present में, or it will happen, that means in the future, right? So what are tense? They are the words that tells us about the time of an action, right? I have written some example also. So what is the example number first? I write a letter, right? So what is I? I is it is a subject, right? What is write? It is an action, verb. A is an article and letter is an object, right? So here couple of words are written. They are making a sentence, a complete sentence. So what is I being a subject, and in this group of words, or in this particular sentence, what is the word that is showing the tense, or you can say the time. Are you able to see the word right in that? So this is the word that is showing the tense, and what kind of a tense it is showing? It is showing simple present tense, right? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा ये कि मैं एक लेटर लिखता हूँ आया लास्ट में, ठीक है? तो हूँ जो आ रहा है वो कहाँ की बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की. दैट मींस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड फ्रॉम व्हिच वर्ड इट इज टेकन? फ्रॉम द वर्ब राइट, व्हिच इज एन एक्शन वर्ब, राइट? सेकंड, I brush my teeth daily, right? So I brush my teeth daily. इसको भी आप कन्वर्ट करोगे हिंदी में तो क्या होगा? It will be like कि मैं अपने दांतों को रोज साफ करता हूँ, या मैं अपने दांतों में रोज ब्रश करता हूँ. तो करता हूँ आ रहा है, हूँ कहाँ की बात कर रहा है? Again it is talking about simple present tense. So I being a subject, brush is an action verb, my possessive adjective, teeth object, and daily, that means adverb of time. So again this brush is an action verb. Brush क्या है इसमें? Action verb है, ठीक है? That means it is showing an action that happens in the present time as an habitual action, right? So over here in this particular sentence, brush is a word which is telling simple present tense, right? Now let us see the third one. I am eating my lunch. So I am eating my lunch. ये क्या होगा? अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे हिंदी में तो क्या होगा कि मैं अपना लंच कर रहा हूँ. इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग ऑन, और लास्ट में क्या आ रहा है? हूँ, दैट मींस प्रेजेंट है. तो I being a subject and being a helping verb, right? Eating is being an action verb. My being a possessive adjective, right? And lunch being an object, right? So यहाँ पे am क्या दिखा रहा है? am दिखा रहा है present है, क्योंकि हम जब present की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? या तो is लिखते हैं, या तो am लिखते हैं, या तो are लिखते हैं, right? is और am सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और are प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है I am eating my lunch. तो am क्या हो गया? ये present दिखा रहा है. eating जो है, जो कि हमारा एक्शन वर्ब है, ये क्या दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूअस, राइट? और am की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ पे हो रहा है? ये प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. ये एक्शन कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट टाइम. और कैसा एक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, बिकॉज
eating जो लिखा हुआ है वो कौन सा वर्ब है, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है. So I am eating my lunch, ये कौन सा टेंस है, present continuous, right? So with these three examples we have learned that what is tense and how it works, right? So we have studied first sentence under the heading simple present tense, second again under the heading simple present tense, and third present continuous. Let's see, or let's proceed further. Now this tense is divided into three main parts, right? Now this tense is divided into three main parts. Let's see what are they. First is present tense, right? So आपको पता होगा ये टेंस तीन आगे जाके ये टेंस जो मेन टेंस होता है वो तीन पार्ट में, तीन मेन पार्ट में डिवाइड होता है. तो फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है. प्रेजेंट टेंस इट शोज द प्रेजेंट टाइम. ये क्या दिखाता है, प्रेजेंट टाइम दिखाता है. एज ऑल द एक्शन अंडर दिस अकर्स. ये देखिए अकर्स, अकर्स इसका मतलब होता है आ रहा है लास्ट में, दैट मींस प्रेजेंट होता है. अकर्स एट द प्रेजेंट टाइम और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. या तो जब हम बोल रहे होते हैं तब होता है, तब होता है ऐसा, और या तो सिंपली कहाँ होता है, प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन अकर्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ, इस बोर्ड की बात करूँ, तो आप मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस बोर्ड पे काफी सारी चीजें लिखी हैं. तो इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कहाँ पे, प्रेजेंट है. कि हाँ लिखी है, इसका मतलब हाँ ये सच है. तो ये कहाँ की बात हो रही है, प्रेजेंट की. तो ऐसी चीजों को, ऐसे एक्शन को दिखाता हुआ है प्रेजेंट टेंस. और कौन से एक्शन को, जो कि या तो बोलते समय वो है वहाँ पे, और या तो सिंपल क्या होता है, अकर होता है कहाँ पे, मतलब होता है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम. सो फिर से पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस. इट शोज द प्रेजेंट टाइम. पहली बात तो प्रेजेंट टाइम दिखाता है. As all the actions, जितने भी actions होते हैं under this, as all the actions under this occurs at the present time. या तो present time में होते हैं, या जब हम उसको उस action के बारे में बोल रहे होते हैं तो वो होता है वहाँ पे. इस तरीके से उन्हीं सब action को define करने वाले tense को क्या बोलते हैं, present tense. Let's see the next, that is past tense. अब जो सेकंड कैटेगरी है इस मेन पार्ट की, वो सेकंड कैटेगरी क्या है, पास्ट टेंस. लेट्स सी दिस वन. इट शोज द पास्ट टाइम. और ये क्या कहता है, पास्ट टाइम एज ऑल द एक्शन, राइट, एज ऑल द एक्शन अंडर दिस अकर्ड इन द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम मतलब जो बीत गया है समय, उसमें अकर यानी मैंने ईडी लिखा है, राइट. सो अकर मतलब हो चुका है पहले. So occur in the past time. past मतलब जो बीत चुका है समय. तो जो बीत चुका है उस समय में अगर कोई एक्शन occur हुआ है, मतलब हुआ था, तो उसको बताने वाला कौन सा टेंस होता है, वो होता है past tense, right? So past tense is the tense that shows all the action or the time about all the action that occurred in the past or that had already gone in the past, right? So let's see the third one. Third main part जो है tense का, वो है क्या, future tense. It shows the future time. Again, it shows the future time. The future time दिखाता है as all the action under this will occur or happen in the near or coming future, right? So ये क्या दिखाता है, पहली बार तो future time दिखाता है, क्योंकि इसमें जितने भी एक्शन होते हैं वो will लगा हुआ है. So will occur मतलब होगा या will happen, right? Will occur या will happen, that means ऐसा होगा, ना हुआ था, ना हो चुका है, ना है, बल्कि होगा मतलब आने वाले समय में. So will occur or will happen in the near future or near or coming future, मतलब आने वाले समय में ऐसा होगा, right? अभी हुआ नहीं. So class we have gone through the tense, right? The definition of tense, where we have studied what is tense. Tense are the words that tells us about the time of an action, right? Whether it had happened, whether it happens, or it will happen in the near future. With these three examples, and we have also gone through the three main parts of the tense, that is present tense, past tense, and future tense, right? So let's proceed further, class. So further, the three main parts of the tense is divided into four sub parts each, right?
So just now we have studied that tense get divided into three main parts, that is past tense, sorry present tense, past tense and future tense, right? So further और आगे जाके ये तीनों tense further four sub parts में divide होते हैं, right? So three main parts of these tenses are get divided into four main sub parts, right? So first tense was present tense. Now this present tense is get divided into four main sub parts. जिसका पहला पार्ट ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सो द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स सी व्हाट इज इट. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट occurs in the present or at the time of speaking, right? So it is very similar to what we have studied about the definition, that is present tense, right? Similar definition होती है. So it is used to indicate the time of an action. That means the time. ये भी indicate क्या करता है? Time करता है, because it is a tense. So it indicates the time of an action. वो action जो कि कहाँ occur होता है, मतलब होता कहाँ पे है? Present time में, right? So occur means s लगा हुआ है, occurs, that means होता है कहाँ पे? Present में और at the time of speaking, या जब हम उस action के बारे में बोलते हैं तब अगर वो मतलब तब होता है, और या तो simply वो अगर होता है कहाँ पे? प्रेजेंट टाइम, राइट? सो द एक्शन और द टाइम अबाउट दीज एक्शंस व्हिच हैपन इन द प्रेजेंट टाइम, दे आर ऑलवेज टोल्ड बाय व्हिच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? बिकॉज़ इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट occurs in the present or at the time of speaking, right? So let's see the sentence structure. इसका sentence structure क्या होता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, राइट? तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है. वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. और ये कौन सा वर्ब होता है? आई एम टॉकिंग ओवर हियर व्हिच काइंड ऑफ वर्ब? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, राइट? सो सब्जेक्ट वर्ब दैट इज एक्शन वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? दूसरे सेंटेंस में हम कई बार सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, यू कैन सी आई हैव मेंशन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट. और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा आएगा? आर आएगा, इज आएगा या तो एम आएगा, ठीक है? तो आर ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इज और एम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये वर्ब एक्शन वर्ब बताना है और यहाँ मैंने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस बेस फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. दूसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 1, ही स्टडीज इन क्लास 8, राइट? सो ही स्टडीज इन क्लास 8 अगर इसे आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि वो क्लास 8 में पढ़ता है आ रहा है लास्ट में, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट? So he is a subject. Studies क्या है? Action verb है, which is the first form of the word, right? In क्या है? ये preposition है और class 8 क्या है? Object है, right? So now you can see sentence structure पहले वाले के हिसाब से बना है ना? ये sentence जो बना है पहले वाले के हिसाब से बना है कि इसमें subject है plus verb, और verb कौन सी form है? First form. So you can see verb की कौन सी form यहाँ पे है? First form with the subject, that means third person pronoun he, right? Let's see the second sentence or second example. We are in the class, right? We are in class or we are in the class, that same, like all the way same. So we क्या है? Subject है, are क्या है? Helping verb है. Now अभी तक यहाँ पे हमारा action verb आ रहा था पहले वाले sentence में. Now अब दूसरे वाले sentence में मैंने क्या लिखा हुआ है? are लिखा हुआ है, जो क्या है? Helping verb. But this are is telling the present tense or present tense. We are in क्या है? preposition है and class is an object. So we are in class, that means are क्या है? यहाँ पे are जो है वो helping verb है in preposition class object, right? So ये इस are से भी हम क्या बोले? अगर आपसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? We are in class, that means हम क्लास में हैं. तो क्लास में हैं, लास्ट में क्या आ रहा है कहाँ की बात करता है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. So we are in class, we क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और ये कौन सा कैसा सब्जेक्ट है? किस फॉर्म का सब्जेक्ट है? इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? सो
प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सो वही प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब और वी के साथ क्या लगा है आर, और आर क्या था प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम। तो वी आर इन क्लास, दैट मींस हम क्लास में हैं। So what kind of tense it is showing? It is showing simple present tense, where we is a subject, R is a helping verb in preposition class object, right? So these are the two affirmative structures with the help of which we used to express the action that happens in the present time, right? Let's see the negative structure. Now I have written the negative structure. ये affirmative structure था, simple present tense था. अब negative structure देखते हैं किसका? Simple present tense का. Let's see. And do not between subject and main verb with plural subject, right? So हमें क्या ऐड करना है? ऐड हमें करना है do not. हमें do not ऐड करना है किसके बीच में? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। मतलब ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमें क्या ऐड करना है? do not। कब? जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, राइट? जब सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हमें do not ऐड करना है। do जो कि प्रेजेंट टेंस दिखाएगा और नॉट क्या आएगा जो कि प्रेजेंट टेंस जो दिखाएगा और साथ में किसके साथ यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और नॉट क्या एक्सप्रेस करेगा? नेगेटिव सेंस। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो ऐड डू नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड करना है? डू नॉट ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। एंड डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमें डज नॉट ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और बिटवीन किसके? इस यहाँ भी इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें डज नॉट ऐड करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, राइट? सो लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव रिटन एग्जांपल, ही डज नॉट रीड इन क्लास 8 और ही डज नॉट स्टडी इन क्लास 8, राइट? जैसे ये वाला एग्जांपल है तो आप देख सकते हो यही वाला सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर बीच में क्या है? ये हमारा था, ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया? डज नॉट। डज क्यों? बिकॉज ये सिंगुलर वर्ब है, राइट? और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये डज ही है जो कि क्या दिखा रहा है? ये डज, क्योंकि आप ये सारे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड, कौन सा वर्ड है? तो डज। डज ये है जो कि हमें क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट टेंस, राइट? और दूसरा वर्ड कोई नहीं है जो एक्सप्रेस कर रहा है प्रेजेंट टेंस। सिर्फ डज से ही पता चला है कि बात कहाँ की हो रही है? प्रेजेंट टेंस। नॉट जो लगा हुआ है वो एक्सप्रेस कर रहा है नेगेटिव सेंस, मतलब नहीं वाला सेंस कौन एक्सप्रेस कर रहा है? नॉट। जबकि डज जो क्या कर रहा है? वो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस कर रहा है। सो ही डज नॉट रीड और ही डज नॉट स्टडी क्लास 8, राइट? सो दैट मींस he being a subject does which is showing the present time, not expressing the negative sense in the sentence. Read which is an action verb first form in preposition and class 8 is an object, right? Let's see the second one. They do not go in the park. So they are यहाँ पे अब they are, so that means they क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो लिखा हुआ है पर they तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, पर कैसा किस फॉर्म का ये है सब्जेक्ट? ये है प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? ये है प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? सो प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए हमने डज से हटा के, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि जब आप वर्ब में किसी भी वर्ब में es जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है? ये होता है सिंगुलर वर्ब। और जब सिर्फ ये डू रहता है, ठीक है, मतलब es या s नहीं जुड़ा रहता कुछ भी, तो ये कहलाता है प्लूरल वर्ब, राइट? सो उसी तरह यहाँ भी हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो डू आया, अब अगेन ये डू जो है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम। सो दे डू नॉट, अब नॉट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंस की वजह से दे डू नॉट गो। वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन द पार्ट। इन क्या है? प्रीपोजिशन, द आर्टिकल एंड पार्ट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो ओवर हियर आई हैव रिटन he does not go, sorry, he does not read in class 8 और he does not study in class 8। एंड सेकंड वाला क्या था? they do not go in the park। तो मैंने आपको दोनों तरफ से एक सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से भी एग्जांपल समझा दिया जिसमें डज लग रहा है और एक प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने आपको सेंटेंस बता दिया जिसमें क्या लग रहा है? डू, राइट? सो डू एंड डज दे आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ डिड, राइट? डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
Now let us go through the last one. We are not in the class. So we are not in the class, ये वाला सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में चेंज किया. We are in the class. पहले बोला था we are in the class, मतलब हम क्लास में हैं. अब बोल रहा है we are not in the class. तो ये भी यहाँ भी आ जाएगा कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के का एक्शन दिखा रहा है तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे. सो आया we that means subject are which is telling the present tense, right? and are क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूज हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. so we are not expressing the negative sense, not in the class. हम क्लास में नहीं हैं. लास्ट में क्या है, तो इसका मतलब यहाँ की बातें कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट.